Okay. Hello, Kancha. Hello, Shashank. Welcome you in this short meeting. Uh, as you know, we will discuss about the term personal financial planning. So, Kancha, do you know what is personal financial planning? Do you ever hear this term? Hello. Yeah, I'm audible. So, you know the we are discussing about the term personal financing. Can you tell me your views about the term personal financial planning? Financial management of financial management of what? Yes, yes. So, in simple terms, we can say financial planning is something forecasting the financial future financial needs. Okay, am I right? Where the term personal financing refer to any individuals or any family. Both are okay. So, come to next. Why do we need personal financing planning? What do you think? Why do we need? Hmm. Hmm. Yes. Yes. Yeah. So we can also say like we all are human beings. We have different our goals, target, achievements. In the same way, in financial terms, we also have some our financial goals. My financial goal is different than you, and your financial goal is different from others. Correct. For achieve this, we need the financial statement of financial planning. For achieving this, we need financial planning, right? Yeah. So just an example. Uh, Suppose now you are married, yeah, and you want a corpus for your you want some education corpus for your daughter for 10 lakh rupees for a college fees. Now she is just 1 year. Hello. So we were there at why we need financial planning. So Akanja, if you need 10 lakh rupees for your daughter education when she turned for 18 year of age, then you should have some financial planning. uh, in this time you will need some financial. You cannot put your money in bank and wait for the 18 years to grow up. It will not work for you, right? Okay, suppose uh, you want uh, 10 lakh rupees for college education for your child. Okay, and so what investment decision you will take, or you just put your money in bank FDs or bank saving account. Hmm. So can you rely on bank saving account like you will your saving will turn it 20 lakhs rupees after 10 years in bank FDs? Yeah. So that's why we need some other instrument, other financial, which is the modern financial instrument.
to investment. Yeah, yeah. Hmm. So can you tell me what is yeah? So can you tell me what was the traditional way of investment when you when our when our in times of our parents or grandparents? Yeah. Hmm. Gold investment. Yeah. FD, RDs. Yeah. Yeah, you are correct. They will always suggest to bank FDs, RDs. Right. But bank is very safe as per risk awareness. Hello. Hello. Yeah, but bank is very safe as a point of investment. Yeah, LIC is also safe, but the return is also low. Hmm. Okay. I share you an example, please, Fita. Are you able to see my slide? Now you able? Yeah. Am I audible? So you are saying that bank FDs and LIC policies are more safe. Yeah, safe, but return is also less compared to other mutual fund and bank and gold investment, digital gold. But there is also something like inflation, महंगाई दर. So inflation is something which depreciate the currency value. Okay, suppose you have 50 rupees now एंड मैं तुमसे कहता हूँ तुम 5 रुपए वाली 10 चॉकलेट लेके आओ डेयरी मिल्क की. आप ले आओगे. लेकिन ये बात अगर मैं 2 साल बाद कहूँ कि 50 रुपए में डेयरी मिल्क वाली 10 चॉकलेट लेके आओ तो आप लेके आओगे. क्यों. प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है. हो सकता है 50 रुपए में आपको 2 साल बाद 10 के बजाय 8 चॉकलेट मिले, 6 मिले, 7 मिले. तो इसी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट चलता है. आपको पता है जैसे कि बैंक एफडी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. Yeah, it is something like 5.50 something. Where the current inflation rate in India is more than 6%. So how can we manage with such FDs with an bank? Where is our FD written only 5.50 and inflation more than 6%? We have to give some extra from our own pocket. So in this, so
नहीं वो करते थे, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे में था, जो लोग सोचते सोचते हैं कि लाइक बैंक ही एक अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाँ लेकिन वो हाँ लेकिन वो दूसरे टर्म जैसे इन्फ्लेशन हुआ या और भी जो रेट होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ इंटरेस्ट। हाँ हाँ, क्योंकि उनके टाइम वो इतने इतने ऑप्शन भी नहीं थे, लिमिटेड ऑप्शन थे। उनके टाइम ऑप्शन आप थे बैंक एफडीज, रियल एस्टेट वगैरह, सिर्फ ये ऑप्शन थे। लेकिन अब जो है सिनेरियो चेंज हो गया है। अब शेयर मार्केट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेप्ट म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, डिजिटल असेट्स है, और अभी एक नया टर्म आया है, डिजिटल गोल्ड आया है, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपने कभी आपको क्या लगता है कि मतलब आप किस में चाहोगे कि आप, और जो पर्सनल फाइनेंस आप करो अपनी, किस किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे आप? तो आप आपने ऐसा कुछ कोई सोर्स चूज कर रखा है कि यहाँ पे आपको देखा रिटर्न ज़्यादा हो? हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो एक ही है, एस आई पी म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसमें तुम क्या है, एज लो जितना भी तुम्हारा अमाउंट है, 100 रुपये 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं नहीं ये नहीं नहीं, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म्स के होता है। अब ऐसा नहीं कि तुम एक साल बाद तुम मानो कि तुम्हारा रिटर्न मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा नहीं, पहली बात तो ये है कि जो एल आई सी पॉलिसी होती हैं ये इन्वेस्टमेंट का होती नहीं है। क्योंकि एल आई सी का पर्पस यही रहता है कि वो बस एक आप तुम्हें सेफ प्रोवाइड करता है, तुम्हारे आने वाले फोरकास्ट फ्यूचर अनफॉर्चुनेट के अकॉर्डिंग, वो कोई इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं होता वो एल आई सी। मतलब वो हेल्थ इंश्योरेंस की होती है, वो ऐसा वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है वो तो। हाँ बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है तो, अगर मान लो कुछ भगवान अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए, तो इसमें तो हेल्थ तो ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारी पूरी सेविंग चली जाएंगी, अगर कुछ अगर तुमने नहीं लिया। हम्म। तो इन सब चीज़ों में तो ज़रूरी है। हम्म। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, फिर भी एक टर्म टर्म इंश्योरेंस होता है ना, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हाँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस वो प्योर तुम्हारा एक इंश्योरेंस ही होता है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता। पैसे तो डालने पड़ते हैं, लेकिन पर वो जो प्योर इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं ना, वो होता है जो जो तुम्हारे मरने के बाद सेव करता है तुम्हारी फैमिली को, फ्यूचर नीड फाइनेंशियल नीड्स के रिगार्डिंग। तो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर सकती है, इसमें ऐसे कोई तो जरूरत नहीं है कि कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। किससे बात करनी पड़ेगी?
कुछ बात नहीं करनी, मैंने खुद SIP करा रखी है म्यूचुअल फंड में, दो दो। किराए कैसे रखी है, इतने सारे तुम्हारे पास अब, तुम्हारे पास फ़ोन है, पूरा डिजिटल हो चुका है, फिर भी तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। मेरा तो सीधा मैंने जो स्कीम चूज़ की है म्यूचुअल फंड में, वो चूज़ की है इंडेक्स पॉइंट, निफ्टी इंडेक्स की। जैसे जैसे वो, उसमें क्या है, जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ता रहेगा इंडिया का, उसी उसी तरह से मेरा जो वैल्यू अमाउंट की वो भी बढ़ती रहेगी। घट भी तो जाएगी, लेकिन मेरा ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को एक साल में कहा 6 महीने में निकलना है, वो तो लॉन्ग टर्म्स के लिए, 15 15 साल के लिए है। 15 साल में सीधी सीधी बात है, अब इंडिया ग्रोथ ही करेगा। शेयर शेयर मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो तो म्यूचुअल फंड जो हाउसेस होते हैं वो खुद ही करते हैं वो। क्या? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। पंचा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ एंड शशांक। सो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू इंस्ट्रूमेंट है, न्यू न्यू ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग व्यूज़। हैव अ गुड डे। बाय।